Assalamu alaikum, everyone, and welcome to another episode of the SIL Legal Lounge podcast, Let's Talk Law, a show where we speak about different areas of law and policy in a frank and easy to understand manner so that everyone can end up learning something new. Our topic for today concerns artificial intelligence and the use of AI by legal professionals in particular. How far can they use this? Can they even use it? And more importantly, is it going to take over their jobs in the future? Our guest for today is an expert on the topic. We have with us Advocate Adam Jabbar, who is an internationally recognized technology lawyer. And may I add, I'm very proud to add this, he's also an SIL alumni member, so one of my students. He has co founded Pakistan's first AI powered case law research tool named Your Munshi. He has also published several books on the use of AI prompting amongst legal professionals and continues to train lawyers on the responsible use of AI. We recently published his article on our forum as well on the use of AI amongst lawyers, and the topic was master or be mastered. So the conversation is going to be revolving around particularly this aspect. Assalamu alaikum, Adam. How are you? Walaikum salam ji. Alhamdulillah, I'm doing well. First of all, thank you for having me. And all the credit goes to SIL. And just like you mentioned, I've been part of SIL and I graduated from here. I did my law and the journey started from here. And just like what you described, this is where we are right now. Yeah. So we'll be talking about AI and law. You gave a very good comprehensive introduction about me, but just a brief. I'm a technology lawyer and I'm be practicing in Islamabad. I'm also running an international legal consultancy called Techlogy, where we've been advising different tech companies as far as their digital compliance is concerned. And we mainly deal with privacy policies, data protections, their cybersecurity aspects. We also do ISO audits, and we've been handling all the, you could say, the legal policy work for the tech companies as well. And we recently co-founded Your Munshi. That was a year back, and that is a AI powered assistant that helps with you with case law research. Basically, you could say a newer version of Pakistan Law Site that is powered and backed by AI. And I have also published a few books on this area. And recently, last week, in fact, I have published my latest book that is called GPT-5 for Lawyers. And that would be available on Amazon by today or tomorrow, inshallah. Wonderful. I'm definitely going to have a copy of that in the library. And Yes, definitely. You should the have it. law clinic is also going to need their subscription renewed for your Munshi as well. So, Yes, of course. Adam, the very first question that I have, because some a lot of people I'm sure who are watching this, not everybody understands how AI exactly is used within the legal industry. Mhm. So, first of all, how do you define AI in the context of the legal industry? And more Mhm. importantly, like how is it currently being used in the legal practice today? So AI is playing a very crucial part in the legal industry. It has been automating different tasks for the legal professionals that starts from document drafting, goes to document reviews, drafting legal notices, petitions, whatever. Basically, it automates all the tasks. So coming towards AI and law, AI is basically the backbone of the new, you could say, the modern legal profession. And without AI, things cannot move. And you guys must be aware that just 2 days back from this podcast, our Honorable Chief Justice of the Supreme Court, Yahya Afridi, was giving a press conference on expediting the judiciary and adopting technology in the Supreme Court. And according to his remarks, he was endorsing the use of AI. That if we do not bring AI in our judiciary, so we would be late and we would be left behind. So you could see that it's a very pivotal role between that. All right, but then you also you just mentioned yourself that AI is doing a lot of important work. Will it eventually replace certain type of legal jobs?
And if so, which ones will they be? जी, if you see Elon Musk remarks that were in 2022 when ChatGPT was emerging. So he said that AI would be replacing a lot of boring jobs. Like Boring it would jobs. definitely, yes. So I won't lie about that. There's no doubt about denying it. A lot of jobs are being replaced, and you could see that the writing tasks are now automated. The data entry jobs, a lot of them are automated. But you could see you could observe one thing, that the person uh, who was doing these jobs might be replaced, but the person who knows how to use AI to do these jobs will not be replaced. So basically, AI is automating tasks. It's not replacing the job. Hmm. So if you know how to use AI, I'll give you a small example that in the 90s when the internet was emerging, so when emails came up, so you could see that the postal jobs, the fax, the courier jobs, people said that these industries would be completely replaced. But now you can see that still the courier companies exist. Still there are postal services there. They are not at the same capacity. उतनी jobs आप कह सकते हैं कि उसमें नहीं है postal में, but still they exist and they have integrated different services. वो खुद आपको जो है सर्टिफाइड मेल्स और ये सारी चीजें दे रहे हैं. बट यू कुड सी के एआई जो है, इट विल प्ले अ सिमिलर पार्ट जिस तरह का इंटरनेट रेवोल्यूशन था. एंड जस्ट टू कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम बीइंग रिप्लेस्ड, you should know how to use AI. If you don't use AI, so then AI will replace you. But if you know how to use it, you will not be replaced. All right. So that was actually my next question, that what message do you have for, excuse me, future lawyers, who are now just Mhm, coming into the profession? What should they do to make sure that their role is not threatened? mhm. अच्छा, अब देखें, इन द पास्ट 3 years थिंग्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली. इनफैक्ट हम जब आपके पास पढ़ रहे थे एसआईएल में, सो थिंग्स वर प्रीटी डिफरेंट. Mhm. वी वर टॉट ऑन केस लॉ रिसर्च कि हम लोग पाकिस्तान लॉ साइट यूज करें, एंड दैट वाज द ओनली सोर्स विच वे जहाँ पर हम केस लॉ रिसर्च करते थे. एंड यूजुअली वी ओनली यूज्ड टू डू रिसर्च ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स. हम लोग जो है पाकिस्तान कोर्ट पे जाते थे. वी Or यूज्ड you had those टू actual copies with you of the Pakistan law journals, the law digests, and all. एग्जैक्टली हम लॉ जर्नल्स को रेफर करते थे, हम लॉ साइट को देखते थे, हम पाकिस्तान कोर्ट पे डिफरेंट एक्ट्स और ऑर्डिनेंसेस वहां पे सर्च आउट करते थे. एंड थिंग्स वर प्रीटी डिफरेंट. अगर हमें कोई पिटिशन ड्राफ्ट करनी होती थी तो वी यूज टू सिट फॉर आवर्स एंड यूज टू, Yeah. लाइक हमें अपने सीनियर्स को ही देखना होता था और पूछना होता था कि हाउ टू स्टार्ट अ ड्राफ्ट. हमें अगर लीगल नोटिस लिखना है, कहाँ से लिखना है, हाउ टू राइट दैट सब्जेक्ट, हाउ टू फॉर्मेट दैट, हाउ टू राइट अ रिट पिटिशन. सो हमें ये काम करने में कई महीने लग जाते थे क्योंकि सीनियर्स भी बिजी होते थे. एंड कभी उन्होंने इस चीज का ड्राफ्ट दिखा दिया, कभी कोई क्लाइंट केस आया उसको हमने रेफर किया ड्यूरिंग आवर इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप पीरियड. तो उसी से देख देख के सीखते थे. बट ओवर द पास्ट 3 years with the emergence of AI, things have changed a lot. अब जो है, even a first year law student with the help of AI can generate different things. It can test out different things on ChatGPT or on different platforms, even on your Munshi. कि जो है वो एक मैं रिट पिटिशन अगर सैंपल ड्राफ्ट कर रहा हूँ तो वो किस तरह की लगती है. मैं उसको प्रॉम्प्ट दूं कि ड्राफ्ट में रिट पिटिशन एज इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्मेट ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट. मुझे आप जो है कोई लीगल नोटिस का ड्राफ्ट दिखाओ. तो चैट जीपीटी अपने सर्च इंजन से अपनी नए फीचर से, पहले तो नहीं करता था, इट विल फाइंड आउट डिफरेंट टेम्पलेट्स एंड गिव इट टू हिम. इवन अगर वो पढ़ना चाहता है कोई लॉ स्टूडेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के जो है मेन पिलर्स या उसके जो मेन प्रिंसिपल्स पूछना चाहता है, ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन के, तो इट्स जस्ट गोना गिव हिम अ प्रॉम्प्ट टू चैट जीपीटी और चैट जीपीटी भी उसको बता देगा जी कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए. सो ये चीजें जो हैं ओवर द पास्ट 3 years have rapidly changed. We had to refer to the books. इवन अभी भी जो है बुक्स प्ले क्रूशियल रोल, क्योंकि अभी भी एआई इतना एक्यूरेट नहीं है और इतनी सही इंफॉर्मेशन नहीं देता. I एट was टाइम्स just इट going to हेलुसिनेट्स. ask, can you trust हाँ हाँ AI completely? या वो हम आगे इसको उसके ऊपर डिस्कस करते हैं. बट जस्ट गिविंग अ स्मॉल पिक्चर जस्ट फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि जो है इतना जो चेंज आया है, एंड आई एम टेलिंग टू लॉ स्टूडेंट्स कि अब इट्स नॉट समथिंग ऑप्शनल.
law students have to use AI. It's, you could say, mandatory, or it's, अब ये this is the need of the market, और this is the new skill. जैसे पहले होता था कि कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, अब जो है एआई यूज करना आना चाहिए. And using AI is understanding AI is difficult, but using AI is not that difficult. It's simply, you could say, इनके इंटरफेस इजी होते हैं. दे आर ऑल चैटबॉट्स, यू टॉक टू देम लाइक ए ह्यूमन, यू डू कन्वर्सेशन टू देम, वो आपको उसी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं. बट कंसिडरिंग द एथिकल कंसिडरेशंस, हाउ टू यूज देम, वो सारा हम डिस्कस करेंगे. दैट इज अंडरस्टैंडिंग एआई इज अ बिग, you could say, that is a very vast universe. You can say it's a whole new world that needs to be understood. And keeping in view कि पाकिस्तान में अभी कोई एआई के जो है पॉलिसीज नहीं है, ना कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं. सो वो हमें सब समझते हुए, एज अ न्यू लॉ स्टूडेंट, क्रिटिकली हमें सब कुछ इवेल्युएट करना है. एंड वी नीड टू फिगर आउट on how we should start our law careers, on understanding AI and how to use them effectively. All right. So, Adam, I have some questions here which were asked by people who read your article. They sent in some questions, and one of them would be that can AI ever be trusted in sensitive areas? Like tomorrow, let's suppose if it is used for sentencing decisions or something of the sort, can AI be trusted for that? देखें जी, आई थिंक नो, नथिंग कैन रिप्लेस a human brain. अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, एंड वी आर सुपीरियर अपॉन ऑल बीइंग्स. और एआई इज समथिंग दैट वी क्रिएटेड. एआई डिड नॉट क्रिएटेड अस. सो it's, by the end of the day, it's just a, you could say, just a machine, or just a system that is being trained by humans. And as, और कोई भी मशीन हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई whatever it is, it always makes mistakes, and it can never be perfect. आप जितना अच्छा एआई मॉडल ट्रेन कर लें, इवन यू सी ओपन एआई ने चैट जीपीटी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है. बट स्टिल, वेन एवर यू ट्राई एंड यू आस्क फॉर एनी केस लॉ रिसर्च, 10 में से 5 दफा चैट जीपीटी आपको जो है वो गलत केस लॉ प्रोवाइड करेगा, और हेलुसिनेट करेगा, एंड इट विल प्रोवाइड यू केसेस दैट डोंट इवन एग्जिस्ट. That सो actually happened कमिंग टू also, दैट, didn't it? यस, बहुत होता है. आप अभी Report. उसको 5 प्रॉम्प्ट्स दें, एंड आई एम श्योर वो आपको 3 गलत केस लॉज प्रोवाइड करेगा इन दी पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि पाकिस्तानी कोर्ट डेटा उसके पास इतना ट्रेंड नहीं है. तो इवन यूएस में भी वो गलतियां करता है, और यूएस में भी एक न्यूयॉर्क अटर्नी था, ही वाज फाइंड फॉर प्रोवाइडिंग fictitious केसेस इन द कोर्ट. तो कमिंग टू योर पॉइंट, टू योर क्वेश्चन, के क्या हम इसको प्रिडिक्टिव एनालिसिस में यूज कर सकते हैं, और क्या हम इसको डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हैं. सो कमिंग टू दैट, एआई को आप यूज कर सकते हैं एज अ सेकंड ओपिनियन. नो डाउट इट्स रियली गुड फॉर प्रिडिक्टिव एनालिसिस. यू गिव द, अगर हम लीगल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, you give the entire facts of the cases to any AI platform. You give all the evidences by scanning it on through paper on your phone, and you upload those images, and you also give him the past judgments. और आप सारा जितना उसको केस के बारे में डेटा प्रोवाइड करें, and you ask ChatGPT or any other platform or your Munshi to give you a predictive analysis or a decision based on all that information provided. So you could say कि most of the time it will give you an most likely predictable answer that is very much applicable to the real world. But at times you could say there are inaccuracies in the model, and बहुत दफा जो है गलतियां होती हैं. So that could be very detrimental. AI could be biased as well. AI could be wrong in providing answers. So I'll give you an example. अगर कोई criminal trial चल रहा हो, and the judge decides कि इसका जो भी फैसला है वो एआई के एनालिसिस या एआई के प्रिडिक्टिव एनालिसिस के बेसिस पे करूंगा, और आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द इंटायर इंफॉर्मेशन, एआई कोई अपने डेटा सेंटर से अपने जो डेटा जहां से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वो गलत इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ले, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट उस बंदे को जो है रॉन्ग डिसीजन के बेसिस पे उसको कोई 7 साल की इम्प्रिजनमेंट हो जाती है. तो यू कुड सी द कॉन्सिक्वेंसेज इन द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ एआई जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस हो जाते हैं. तो हैविंग इन कीपिंग इन व्यू ऑफ दैट, इसका ये है कि ऑलवेज जजेस हों, लॉ स्टूडेंट्स हों, लॉयर्स हों, या कोई भी प्रोफेशन के कोई भी हो,
whoever is using AI must use it cautiously by understanding the fact that AI can make a lot of mistakes. You cannot use it as a replacement. Even आप as a lawyer you have a ethical duty, and आपकी जो है in your practice आपको अपना बार काउंसिल के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक चलना होता है, एंड आपकी क्लाइंट अटर्नी रिलेशनशिप होती है, उस प्रिविलेज को यू कैन नॉट रूइन इट, एंड कीपिंग और कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मेंटेन करना होता है। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए एआई को आपको कॉशियसली यूज करना है, एंड यू कैन नॉट टोटली रिलाई ऑन इट। अगर मुझे कोई 5 मिनट में एआई कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करके दे देता है, तो आई कैन नॉट सिंपली सेंड इट टू माई क्लाइंट, आई हैव टू री रीड इट, You इट्स double माई check. Yeah. रिस्पॉन्सिबिलिटी। Yes, it's my responsibility to do its due diligence and to verify the contract कि whether वो enforceable है कि नहीं है। और because अगर वो तो एक आपको general template दे देता है, and it's not giving to you specifically to tailored to the Pakistani market or to any other country where you are practicing। तो ये चीजें को देखते हुए प्रिडिक्टिव एनालिसिस को आजकल के हालात में जहां तक एआई प्लेटफॉर्म्स तैयार हुए हैं, आई डोंट सी दे हैव द कैपेबिलिटी टू कंप्लीटली रिप्लेस डिसीजन मेकिंग। Right. So basically, in a nutshell, it's a very good assistant. It's not a very good master. So it shouldn't be relied यस, on as the primary source. All right. So, एग्जैक्टली। Adam, to sum it up, what advice would you give to a law student or a young lawyer who is nervous about AI changing their career path? Because it's uncharted territory. It's something new. जिस तरह आपने बोला है कि in the हम्म 90s when the internet first came out, that was something हम्म completely new. And now for this हम्म generation, it is now AI. So, what advice करेक्ट। do you have for these young lawyers or these law students? We have a lot of students who are now just embarking हम्म upon their LLB degrees. What would you say to them? करेक्ट। देखें जी, why I came towards this field was one of the fear that I had myself when आपने देखा कि आपके सामने I started at Ordicnum, फिर उसके बाद आई वेंट फॉर लिटिगेशन, और फिर लिटिगेशन से मैं ऐसा ऐसा हट के टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी लॉ आया। दैट वाज द फेयर कि आई फोरसी द कैपेबिलिटीज ऑफ एआई एंड द टेक्नोलॉजी। और मुझे अंदर भी एक खौफ सा हो गया था कि वट एवर, अगर चलें आज एक वो एक टूटा फूटा सा कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करके दे रहा है एआई, तो आज से 5 साल बाद वो इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर देगा दैट देयर वुड बी नो अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू गेट हायर्ड टू डू दिस। तो ये फेयर जो है wanted me to dig in this area, and this was an area जहाँ मैं by choice नहीं आया। I was passionate about technology and technology law, but AI was something new for all of us, including myself। और हमें तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन पाकिस्तान 2022 में जब चैट जीपीटी आया है, सो वी वर वेरी अमेज्ड, इट वाज लाइक समथिंग लाइक अ मैजिक टूल फॉर ऑल ऑफ अस। एंड साथ साथ फेयर भी था कि हमारे काम तो कर रहा है, बट अगर हमारे काम कर रहा है सो नो वुड बी हायरिंग अस। तो आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ कोर्सेज। मैंने ऑनलाइन उस वक्त बहुत सारे कोर्सेज ढूंढे, और बहुत सारे मैं लॉ स्टूडेंट्स को भी एडवाइस करूंगा कि बहुत से फ्री कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, आप हार्वर्ड की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। एक सीएस फॉर लॉयर्स का कोर्स था, मैंने 2022 में किया था। फिर वी हैव कोर्सेरा, जहाँ पे मैंने लीगल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कई कोर्सेज किए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का एक कोर्स था एआई फॉर एडवोकेट्स, जहाँ पर उन्होंने पूरा एआई की एथिकल कंसिडरेशंस, लीगल प्रॉम्प्टिंग कैसे करते हैं, गुड प्रॉम्प्ट्स, बैड प्रॉम्प्ट्स, हाउ टू यूज एआई इफेक्टिवली, ये सारी चीजें टू स्टे इन द मार्केट किया था। जस्ट लाइक आई स्टेड इन द स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट के ये अब जो है दिस इज नॉट समथिंग ऑप्शनल, ये अब ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं रहेगा एआई। इवन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वाले जब आए हुए थे अभी रिसेंटली, और उनकी जो डीन थी, एंड दे वर इवन डिस्कसिंग के जो अब हमारा जो फ्यूचर कोर्स वर्क होगा और जो हमारा सिलेबस होगा, अभी उनकी डिस्कशन चल रही है। दे सेड वी विल एआई इज द नीड ऑफ द मार्केट, एंड अब जो है वी हैव टू इंट्रोड्यूस समथिंग ऑन दिस, वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ मॉड्यूल ऑन एआई। सो जिस तरह ये सब कुछ हो रहा है और जितना रैपिडली चेंज हो रहा है, सो सबको आई वुड एडवाइस के गेट इनटू दिस। और इट्स वेरी इजी, आप कोर्सेज तो करें साथ साथ, बट प्ले अराउंड विद ऑल द एआई टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट। बेशक आप हमारा योमुंशी यूज करें, आप चैट जीपीटी यूज करें, आप डिजी लॉयर, जो भी मार्केट में अवेलेबल यूज करें, प्ले विद इट, टेस्ट इट आउट। आप व्हेन यू आर अ लॉ स्टूडेंट, आप अपने जो है यूज इट एज अ सेकंड टूल, आप उसको अपनी लर्निंग के लिए यूज करें, एज अ स्मॉल ट्यूटर यूज करें। आप एसआईएल में उसको
अगर आपको जो भी लेक्चर्स ले रहे हैं आप उसको बोले मुझे समराइज कर दो, यूज इट इन एनी क्रिएटिव वे। और वंस यू ग्रेजुएट, आप जिस तरह आप अपना हाथ जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हाथ सेट होगा। क्योंकि बाद में आप जो भी अगर बाहर भी जाना चाहते हैं, आप जितनी भी फ्यूचर में जॉब्स हैं, दे वोंट बी नीडिंग लॉयर्स हु डोंट नो हाउ टू यूज एआई, डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। दे डेफिनेटली नीड अ लॉयर हु नोज दिस स्किल। सो ये सबको अब जरूरी हो गया, दिस इज समथिंग मैंडेटरी इन माय ओपिनियन। Right. And yes, that makes a lot of sense because, with every profession, one has to keep adapting with the changes. And करेक्ट। technology ke jo changes hain, you can't run away from that, given that everything in our करेक्ट। life is dictated by या। technology currently as well. करेक्ट। But this was very insightful. Thank you so much, Adam. I माय ended up प्लेजर जी। learning quite a bit. And, I think we will be taking your advice. And yes, students should be taught particularly how to be using these AI search engines and करेक्ट। all the apps करेक्ट। that are there, especially when they're doing their case law research. Because again, like you said, करेक्ट। back in the day, when we had to rely on the actual books and the journals and या। so on, it was a very very lengthy करेक्ट। process. It would take us half a वेरी ट्रू। day to complete our research, but this actually makes things a lot more easier and simpler for the students. So that is something which I think universities, lecturers all over, they can definitely take note of that. लेट मी ऐड फॉर द जनरल पार्ट के अभी भी जो है एआई इज नॉट दैट केपेबल। एआई हमें बहुत पावरफुल टूल अभी भी लगता है, और क्योंकि वो इंस्टेंटली हमें आंसर कर देता है और हमें सेटिस्फाई भी कर देता है अपॉन आवर क्वेरीज। बट अभी भी जो है वो हमारे जो लीगल जर्नल्स हैं उसको रिप्लेस नहीं करता। एंड अभी भी लॉ स्टूडेंट्स जो भी सुन रहे हैं इसको, उनको जो है अभी भी जर्नल्स पढ़ने होंगे, उनको अभी भी सारी बुक्स को रेफर करना होगा। जैसा कि मैंने बताया, एआई बहुत दफा करेक्ट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, एंड इट डज नॉट हैव ऑल द डेटा। स्पेसिफिकली पाकिस्तान का तो कोड डेटा उसके पास है ही नहीं, चैट जीपीटी के पास बहुत मिनिमल है। इट ओनली हैज दैट डेटा दैट इज ओनली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। जितनी भी हमारी हार्ड कॉपीज में जजमेंट्स हैं वो उसमें है ही नहीं। सो यू कैन नॉट लाइक हैव अ शॉर्टकट कि अब एआई आ गया है, हमें तो जर्नल्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें बुक देखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब हम तो पढ़ना फिर प्रॉम्प्ट भी देंगे है। और हमें आंसर फिर भी है। और जब तक जो है कोई बहुत अच्छा टूल नहीं आ जाता दैट इज कम्प्लीटली ट्रेन्ड विद द पाकिस्तानी कोड डेटा और द पाकिस्तानी लॉज, फिर शायद आपके लिए आसानियां हो जाएं। अभी भी यू हैव टू डू दैट। इवन देन मैं कहता हूँ, अगर जस्ट लाइक आई सेड द टेक्नोलॉजी इज नॉट परफेक्ट, फिर भी गलतियां करते हैं। यू ऑलवेज नीड टू डबल चेक वेदर इट्स ड्यूरिंग योर स्टडिंग टाइम, वेदर इट्स आफ्टर यू ग्रेजुएट एंड एंटर डिफरेंट जॉब्स और आप प्रोफेशन में आ जाते हैं। फिर भी जो है आपको हर चीज जो है डबल चेक करनी है और डबल वेरीफाई करनी है। एंड कीपिंग इन व्यू आपको एथिकल कंसिडरेशंस जो है, द एथिकल यूज ऑफ एआई कभी भी नहीं भूलना। उसमें चार मेन प्रिंसिपल्स ही हैं। आप जो है अगर इसको सुन रहे हैं और आप इस एरिया में शौक रखते हैं, तो आप जो यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट है, आप उसको पढ़ें, आप उसको समझें, देखें उन्होंने क्या अपने लॉज में स्पेसिफाई किया है, द डूज एंड डोंट्स, कि एक प्लेटफॉर्म को जो है एआई प्लेटफॉर्म को किस तरह का होना चाहिए, उसमें क्या डेटा कलेक्ट कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या आ सकती है क्या नहीं आ सकती। तो आप उसको जैसे यूरोपियन यूनियन का जीडीपीआर था, डेटा प्रोटेक्शन का लॉ, दैट वाज रोल मॉडल फॉर द इंटायर वर्ल्ड। तो मैं कहूंगा जो ईयू का एआई एक्ट है दैट इज इवन अ रोल मॉडल फॉर द एआई लॉज। तो दुनिया में मेरे ख्याल से जितने भी अब एआई लॉज और रेगुलेशंस आ रहे हैं वो उसी से सारे इंस्पायर्ड हैं, एंड दैट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड अ वेरी नाइस लॉ। आप उसको भी देखें। और जो मेन प्रिंसिपल्स मैंने आपको पता है, एआई जो है वो बायस्ड भी होता है टाइम्स, और एआई जो है इनकरेक्ट भी होता है। तीसरा, आपने अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करनी है। अभी रिसेंटली जो है बात जो अनकवर हुई है, जो सैम ऑल्टमैन है ओपन एआई का सीईओ, ही हैड डिस्क्लोज्ड कि चैट जीपीटी डज नॉट केयर अबाउट द प्राइवेसी। आप जो भी इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी को दे रहे हैं दैट इज पब्लिकली अवेलेबल। तो कोई भी आपका क्लाइंट डेटा हो या आपकी अपनी पर्सनल बातें भी अगर आप चैट जीपीटी से करते हैं, तो Be नेवर very गिव आउट careful. पर्सनल इंफॉर्मेशन। यस, बी वेरी केयरफुल, नेवर गिव आउट पर्सनल इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। और ये हमारे लीगल प्रोफेशन में बात इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वी whenever the client provides its information to us, we have a duty to safeguard that information। और अगर हम वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं किसी एआई प्लेटफॉर्म को अननोइंगली और अनइंटेंशनली, तो समझें वो एक पब्लिकली अवेलेबल डेटा हो गया। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने बताया, कोई स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। अगर आप यूएस की बात करें तो वहाँ पर वेरी स्ट्रॉन्ग लॉज, वहाँ पर हिपा का एक लॉ है, HIPAA, हेल्थ हेल्थ के डेटा को रेगुलेट करता है। और जहाँ पर यू आर नॉट अलाउड टू गिव योर क्लाइंट्स
सेंसिटिव पर्सनल डेटा, स्पेसिफिकली आपका जो हेल्थ रिलेटेड है, टू एनी एआई प्लेटफॉर्म। तो वहाँ के जो लॉयर्स हैं वो ऐसा करते हैं कि जब वो चैट जीपीटी यूज करते हैं, तो वो, क्योंकि चैट जीपीटी इज नॉट अ हिपा कंप्लाइंट प्लेटफॉर्म, तो वो हम्म, सारी इंफॉर्मेशन डिलीट करते हैं, वो एम्प्टी प्लेस होल्डर्स आते हैं, और वो सिर्फ फैक्ट्स बताते हैं, और वो फिर चैट जीपीटी यूज करते हैं। हमारे तो है कि सिंपली पूरा डेटा कॉपी पेस्ट कॉपी किया, पेस्ट। पूरी फाइल उठाई और चैट जीपीटी में डाल दिया। बट थिंग्स आर नॉट लाइक दैट आउटसाइड। इनफैक्ट यूएस में अब काफी सारे एआई प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं दैट आर हिपा कंप्लाइंट। और जैसे कि हार्वी है, और वहाँ पे केस टेक्स्ट है, तो इस तरह के काफी सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, एंड दे डू टेक केयर ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी। सो सिमिलरली जब आप प्रैक्टिस में आए तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखें, एंड बी अवेयर ऑफ दैट, लर्न अबाउट एआई एज मच एज यू कैन, सो दैट व्हेन यू एंटर द जॉब मार्केट तो आप इस स्किल को ऑलरेडी मास्टर कर चुके हो। सो मास्टर बिफोर यू आर मास्टर्ड, जस्ट लाइक मैंने अपना article में लिखा Bilkul, था। absolutely. Right. Thank you so much, Adam. This was very helpful, and I माय hope प्लेजर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। you're most welcome. I hope everyone who was watching ended up learning something. And yes, we're definitely going to be having our seminar on this soon at SIL as well, डेफिनेटली, because, like you लुकिंग said, this फॉरवर्ड। is something that we have to inculcate amongst the young lawyer to एग्जैक्टली, be the young lawyers. बिल्कुल So thank you so जी। much, and thank you to everyone watching. If you have any questions or anything that you would like us to have a follow-up session on, please do send us an email at info@sil.edu.pk. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.